सिंहद्वार बोला जाता है। ये देखिए शेर है, शेर का नीचे हाथी, हाथी का सूंड में एक आदमी है। ये देने का कारण क्या होता है ना, शेर को हम लोग को मानते हैं दुर्गा माता का सवारी, शक्ति का प्रतीक। हाथी को मानते हैं लक्ष्मी जी का वाहन, उसको भी दौलत का निशान मानते हैं। तो एक इंसान का पास शक्ति और दौलत दोनों बराबर होने से आदमी का मन में घमंड आ जाता है। घमंड आने से आदमी ऐसा नीचे चला जाता है। एक रानी लोग का डेली रूटीन क्या होता है, ये चक्र में दिया गया। ये देखिए इसमें 8 स्ट्रोक दिया गया। 8 प्रहर में सिंदूर लगा रहे मैडम। उसी टाइम में लेफ्ट हैंड में मिरर, राइट हैंड में सिंदूर लगाने का ऐसा तरीका मैडम। हमारा हिंदू महिला लोग जब शादी हो जाती है, शादी होने के बाद सिंदूर लगाने का कैसा तरीका ऐसे ही लगाता है। The bus ready. We will go to Konark Temple now. চন্দ্রভাগা বিচ থেকে স্ট্যান্ডার্ড ফেস্টিভ্যালটা দেখে নিয়ে আমরা এবার রওনা দিলাম কোনার্কের সান টেম্পলের দিকে। চন্দ্রভাগা বিচ থেকে সান টেম্পলের দূরত্ব খুব একটা নয়, এই মোটামুটি আমাদের 1 থেকে 2 মিনিট মতো লেগেছিল। পৌঁছে গেছি কোনার্কে সেই বিখ্যাত সান টেম্পলে। পৌঁছে গেছি কোনার্ক। ওই আমাদের গাড়ি রাখা পিছনে টেম্পলে আর এখন সাম টেম্পলে যাচ্ছি আমরা। কোনার্কে আগেই পৌঁছে গেছি, টেম্পলে যাচ্ছি। হ্যাঁ এখন টেম্পলে যাচ্ছি। না, ফার্স্টে আমরা চন্দ্রভাগাতে পৌঁছেছিলাম। ও হ্যাঁ, ওটা চন্দ্রভাগা। ওটা চন্দ্রভাগা। এখন কোনার্ক ঢুকছি আমরা। মন্দিরের বাইরে এরকম ছোট ছোট অনেক দোকান আছে। আমরা ঢুকে গেলাম একটি টুপির দোকানে। পছন্দ হলো টুপি, আমি আর ছেলে কিনে নিলাম। ঢুকছি কোনার্ক টেম্পল। এই হলো কোনার্ক টেম্পল। আমি এসেছিলাম 25 years ago. This কোনার্ক মন্দির exactly 25 years ago. और 25 इयर्स के बाद बच्चा और Yes. We are approaching. আমরা অ্যাপ্রোচ করছি কোনার্ক মন্দির। মনে নেই আমার কিরকম ছিল আগে, বাট সেম স্ট্রাকচার। ভিতরে ঢুকে পড়েছি কোনার্কের সূর্য মন্দিরের ভেতরে। এই হচ্ছে বাইরেটা। এখানে অনেক তথ্য লেখা আছে বিভিন্ন ভাষায়। তোমরা এই টেম্পলের ব্যাপারে সব কিছু এখান থেকে তথ্য পড়ে নিতে পারো। বন্ধুরা, আমরা এখন দাঁড়িয়ে আছি ভারতের অন্যতম বিখ্যাত ঐতিহাসিক স্থাপনা কোনার্ক সূর্য মন্দিরের সামনে। ওড়িশার কোনার্কে অবস্থিত এই মন্দিরটি ত্রয়োদশ শতাব্দীতে নির্মিত হয়েছিল। ইতিহাসবিদদের মতে পূর্ব গঙ্গা বংশের রাজা নরসিংহা দেবা প্রায় 1250 খ্রিস্টাব্দে এই বিশাল মন্দিরটি নির্মাণ করেন। प्रत्येक हिंदू मंदिर में पूर्व गेट में सिंहद्वार बोला जाता है। ये देखिए शेर है, शेर का नीचे हाथी, हाथी का सूंड में एक आदमी है। ये देने का कारण क्या होता है ना, शेर को हम लोग को मानते हैं दुर्गा माता का सवारी, शक्ति का प्रतीक। हाथी को मानते हैं लक्ष्मी जी का वाहन, उसको भी दौलत का निशान मानते हैं। तो एक इंसान का पास शक्ति और दौलत दोनों बराबर होने से आदमी का मन में घमंड आ जाता है। घमंड आने से आदमी ऐसा नीचे चला जाता है। सूर्य भगवान बोलते हैं मेरे पास आने से आपके अंदर जो अहंकार की भाव है उनको बाहर प्रकाश करके आइए, अंदर प्रवेश करिए, भगवान को दर्शन मिलेंगे। ये दोनों मूर्ति सेम है। ये होता है पूर्व गेट। आइए। মন্দিরটি আসলে সূর্যদেবের রথের আদলে তৈরি। পুরো স্থাপনাটি দেখতে একটি বিশাল পাথরের রথের মতো, যেখানে রয়েছে 24টি বিশাল চাকা এবং 7টি ঘোড়ার প্রতীক। এই চাকাগুলোর প্রতিটিতে এত সূক্ষ্ম কারুকাজ করা হয়েছে যে আজও দর্শনার্থীরা তা দেখে বিস্মিত হন। কোনার্ক শব্দটির অর্থ নিয়ে একটি জনপ্রিয় ব্যাখ্যা হলো কোনা অর্থ কোণ এবং অর্ক অর্থ সূর্য, অর্থাৎ সূর্যের কোণের স্থান। এই মন্দিরটি শুধু ধর্মীয় স্থাপনা নয়, এটি প্রাচীন ভারতের স্থাপত্য ও প্রকৌশল দক্ষতার এক অসাধারণ নিদর্শন। মন্দিরের দেয়ালে খোদাই করা অসংখ্য ভাস্কর্য সেই সময়ের সমাজ, সংস্কৃতি, সঙ্গীত এবং দৈনন্দিন জীবনের নানা চিত্র তুলে ধরে। हमारा भारत में जो 128 किस्म के डांस पोजेशन है, ये चारों साइड में लगाया डांस पोजेशन, इसलिए इसको बोला जाता है नृत्य मंडप। और इसके पीछे होता है सूर्य भगवान की रथ। हमारा उड़ीसा में जब रथ यात्रा होता है मैडम, तो जब भी रथ निकलता है तो उनका सामने में देवदासी लोग डांस करता है।
इसलिए ये देवदासी लोग को डांस करने के लिए ये नृत्य मंडप बनाया था। आइए। धे रे रे ना मंदिर को बनाया जैसे सूर्य भगवान की रथ में हमारा सूर्य भगवान का 7 कलर, इसलिए 7 घोड़ा लगा हुआ है। इस साइड में राइट में 4 घोड़ा लगा हुआ था, इसको मुगल ने तोड़ दिया। उस साइड में 3, 7 घोड़े और 24 पहिए, जैसे भगवान को रथ को खींच के ले जा रहे हैं, इसी डिजाइन से मंदिर को बनाया। मंदिर को स्टेज ऑफ लाइफ में बनाया। लोग के लिए नीचे बॉटम में दिया गया हाथी घोड़ा एनिमल्स, बीच में लगाया संसार के लिए कामसूत्र मूर्ति और ऊपर में लगाया भगवान की मूर्ति। जैसे मनुष्य का 3 स्टेज है, इसी हिसाब से ये मंदिर को बनाया। आइए। एक रानी लोग का डेली रूटीन क्या होता है, ये चक्र में दिया गया। ये देखिए इसमें 8 स्ट्रोक दिया गया 8 प्रहर के लिए। उस टाइम में 3 घंटा में 1 प्रहर होता है सर, तो 8 3 की 24 घंटा हो जाता है। तो दिन रात मिलाकर 24 घंटे में रानी लोग का क्या क्या ड्यूटी होता है, ये चक्र में दिया गया। देखिए सुबह से जब मैडम लोग उठते हैं ना, दोनों हाथ ऊपर को करके ऐसे अंगड़े लेते हैं। उसका नीचे देखिए रानी लोग को स्नान के लिए 2 साइड में 2 दासी लोग उनको स्नान कर रहे हैं। उसी टाइम में रानी लोग को घूमने के लिए गाड़ी का ऊपर नहीं था, घोड़े का ऊपर में जा रही थी। ये देखिए सर घोड़े का ऊपर में। अब देखिए शाम हो गया तो नीचे सिंगार पकड़ के मेकअप हो रहा है। ये हो गया दिन का 4 प्रहर, और साइड होता है रात का। और ये सेंटर का एक्शन में देखिए उसी टाइम में कोई गलत काम करेंगे, राजा लोग ने तत्काल सजा दे रहे थे, हाथी का पैर में दबा के उनको कुचल देते थे। इसलिए चक्र को बोला जाता है लाइफ सर्कल, यानी कि जीवन चक्र। होते हैं 2 घोड़े, तो 2 घोड़े ने पहले ये दीवाल का ऊपर में था, ये दीवाल टूट जाने का वजह से 2 घोड़े को हमारा पीछे शिफ्ट किया गया। ये 2 घोड़े होते हैं हमारा उड़ीसा गवर्नमेंट का दक्षिण गेट का द्वारपाल। इसी का शिखर में चुंबक था, 52 टन का चुंबक। ये मंदिर जब से बना हुआ था बिना सीमेंट में, हर एक पत्थर में लोहे का पिन से सब जॉइंटिंग किया गया। इसीलिए राजा लोग ने मेन मंदिर का शिखर में चुंबक रखे थे। चुंबक वजह से ये मंदिर पूरा बैलेंस में था। यहाँ जब वो पुर्तगाल मुगल जो बिजनेस के लिए उड़ीसा को आए थे, उन लोग को समुद्र में आए थे। समुद्र का अंदर में जो जहाज सर जाना आना करता था, जहाज का जो दिगंबरण करने के लिए जो कंपास होता था, उसको मिसगाइड करता था वो चुंबक कैलिब्रेशन। इसीलिए वो चुंबक को जब हटाया 1626 में, तो मेन मंदिर कोलैप्स हो गया। कोलैप्स होने के कारण से हमारा हिंदू मंदिर खंडित मंदिर पूजा नहीं होता है, इसलिए इसको वर्ल्ड हेरिटेज यानी कि विश्व ऐतिह्य धरोहर है। ये ऊपर में देखिए ये होता है सूर्य भगवान की मूर्ति जो हरे वाले पत्थर में, ये होता है प्रभात, आगे दिखाएंगे मध्याह्न और लास्ट में अस्त। आज्ञा এটা হচ্ছে অরিজিনাল মূর্তি কিন্তু গাইড আমাদেরকে দেখাচ্ছিলেন আমাদের জাতীয় পতাকার মধ্যে নীল রঙের যে অশোক চক্র আমরা দেখতে পাই, সেই চক্রর অরিজিনাল কপিটি এইটি। সূর্য মন্দিরের ঠিক পেছনেই অবস্থিত ছায়া মন্দির। ছায়া দেবী হলেন সূর্যদেবের পত্নী এবং শনিদেবের মাতা। এটা হলো ছায়া দেবী। না মন্দির এইটা হলো মেন মন্দিরটা। পুজো এখন আর হয় না। না পুজো 400 সাল হয়ে গেছে বন্ধ। পুজো কিছু হচ্ছে না। দেখা যাচ্ছে প্রভাত, ये হচ্ছে মধ্যাহ্ন। ओरिजिनल प्लेस ओरिजिनल मंदिर गिर जाने का बाद में इसको इधर रिस्टोर किया गया था। आपका तो टाइमिंग नहीं है, टाइमिंग होने से और अच्छा से एक्सप्लेन करने का। ये देखिए कि रॉयल लेडी है, यानी कि रानी लोग के है, उनका 2 साइड में 2 दासी लोग खड़े हैं। वो क्या करते हैं ना, सिंदूर लगा रहे हैं मैडम। उसी टाइम में लेफ्ट हैंड में मिरर, राइट हैंड में सिंदूर लगाने का ऐसा तरीका मैडम। हमारा हिंदू महिला लोग जब शादी हो जाती है, शादी होने के बाद सिंदूर लगाने का कैसा तरीका ऐसे ही लगाता है। आइए बाबा ये रोड को बाद में बनाया, लेकिन ये रोड को भी बंद कर दिया।
इसका ऊपर जाने से फिर नीचे जाने का स्टेप से है। जैसे अभी हम लोग जमीन में है तो उसी जगह में भगवान की सिंहासन अभी भी है। देंगे जाने के लिए देंगे, लेकिन 2030 का बाद देंगे। अभी काम चालू है। हाँ सर, इसीलिए क्योंकि मुझको याद है हम लोग अंदर गए थे। हाँ, थक गया तो घोड़े का ऊपर में जा रहे हैं। और एक चीज आप लोग सोचेंगे ये मंदिर का पत्थर यहीं आसपास कहाँ था, लेकिन ऐसा जी सर, एक्चुअली ये हमारा कोस्टल बेल्ट होता है, समुद्र का है, यहाँ कोई पहाड़ पर्वत नहीं था। उसी टाइम से वो लोग पत्थर लाए थे फ्रॉम से ना, उसी टाइम तो गाड़ी मोटर नहीं था। वो लोग को रिवर में नदी का ऊपर में लकड़ी का बोट बना के पत्थर को भसा के लाए थे। अच्छा। और उसी टाइम में भी बैलगाड़ी था, बैलगाड़ी भी वो लोग को यूज किए थे। बैलगाड़ी में भी वो लोग कैसे लाए थे, इधर भी दिया गया। मैडम थोड़ा सा देख लीजिए, आइए। बैलगाड़ी में भी पत्थर भी लोड है। और जहाँ से शाम हो जाएंगे तो बैल को रेस्ट देने के बाद भी खाना भी बनाता है। एक टाइम में ऐसा माफी में उन लोग को पत्थर को लाए थे, बड़ा पत्थर लाए थे नदी के सहारे में, छोटा पीस पत्थर बैलगाड़ी में लाए। हाथी भी लाए? हाँ सर, हाथी के भी यूज किए थे। उत्तर गेट को बोला जाता है गजो द्वार, हाथी का द्वार। ये हाथी दोनों ने इसी गेट में था, हाथी दोनों ने हमारा इधर है। अभी आप लोग जो डांस फेस्टिवल यहाँ देखेंगे तो यहाँ इस तरफ है कि आप लोग मंदिर के अंदर अभी जो ये जो लाइट वगैरह जो लगा हुआ अभी लगा हुआ है आज के लिए। अच्छा, इसलिए इसका पीछे साइड में होता है डांस प्रोग्राम। आप लोग वहाँ बैठ के देखेंगे, ये मंदिर के भी उधर भी देख पाएंगे। একসময় মন্দিরের মূল অংশ আরও উঁচু এবং বিশাল ছিল বলে মনে করা হয়। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও অন্যান্য কারণে এর অনেক অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আজ কোণার্ক সূর্য মন্দিরকে বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক স্থাপনার মধ্যে গণ্য করা হয়। 1984 সালে ইউনেস্কো এটিকে বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থানের মর্যাদা প্রদান করে। ना कि द्वापर का कहानी है मैडम। द्वापर युग में कृष्ण भगवान बेटा का नाम था संभव, जाम्बवती से पैदा हुआ था। उसी को कोड़ी रोग हुआ था, लेप्रोसी से मुक्त होने के लिए उसको नारद मुनि भेजे थे, तुम जाओ चंद्रभागा नदी से नहाओ, 12 साल सूर्य भगवान की उपासना करो, तभी कोड़ी रोग से मुक्त हो जाएगा। तो मुक्त होने के बाद इसी जगह में फेमस हो गया सूर्य पूजा के लिए। सूर्य पूजा के लिए हमारा उड़ीसा का राजा लांगुड़ा नरसिंह देव ने एक भव्य सूर्य मंदिर बनाया था। 1238 में स्टार्ट करके 1250 में कंप्लीट किए थे। 12 साल लगा था। 1250 से लेकर 1626 तक पूजा हुआ था इधर। 1626 में इसको मुगल ने आकार करके मेन मंदिर को तोड़ने के बाद ये मंदिर अशुद्ध हो गया। उसी दिन से पूजा पाठ नहीं है। ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आया है और ये सनराइज का प्लेस होता है। जैसे सनसेट होता है कन्याकुमारी, ये सन राइजिंग का प्लेस होता है। उसी टाइम का ये लोहे का बीम है, 800 साल का लोहे का बीम, अभी तक भी रस्ट नहीं लगा हुआ है। সামনাসামনি এই মন্দিরকে দেখলে সত্যিই বোঝা যায় শত শত বছর আগে কি অসাধারণ দক্ষতায় এই স্থাপত্য নির্মাণ করা হয়েছিল। তোমরা যদি ওড়িশা ভ্রমণে আসো তাহলে কোণার্ক সূর্য মন্দির অবশ্যই তোমাদের ভ্রমণ তালিকায় রাখবে। घर होता है मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट, वहाँ बालेश्वर भगवान की मूर्ति जहाँ अंदर में था पूरा हवा में था, किसी सपोर्टेड में नहीं था। इसका लाइट पूरा डायरेक्ट इसी गेट में जाके पूरा भगवान की माथा पे डायरेक्ट किरण गिरती थी। মন্দির থেকে বেরিয়ে আমরা চলেছি গীতাঞ্জলি রেস্টুরেন্টের দিকে। সেখানে আমাদের জন্য ইভিনিং স্ন্যাক্সের ব্যবস্থা ছিল। করেছি গীতাঞ্জলি রেস্টুরেন্ট। গীতাঞ্জলি রেস্টুরেন্ট ঘোরার পরে টু হ্যাভ আওয়ার হাই টি। মন্দিরের সাথে সামঞ্জস্য রেখেই গীতাঞ্জলি রেস্টুরেন্টটি সাজানো হয়েছে। বেশ সুন্দর ছিমছাম গোছগাছ করা একটি সুন্দর রেস্টুরেন্ট। এখানেই আমাদের ইভিনিং স্ন্যাক্সটি সার্ভ করা হবে। টিকিট এসে পড়েছে।
বেরিয়ে যাচ্ছি কোণার্ক মন্দির থেকে। ওই পিছনে কোণার্কের মন্দির, আর এই যে বাবা রাম আর আসছে। তো বন্ধুরা, আজকের মতো এখানেই শেষ করছি আমাদের কোণার্ক সূর্য মন্দির ভ্রমণ। ভিডিওটি যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটি লাইক করে আমাদেরকে উৎসাহ দিও, আর চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের ভ্রমণ সঙ্গী হয়ে থেকে যেও। আমরা চললাম আমাদের পরবর্তী গন্তব্যের উদ্দেশ্যে। তোমরাও সঙ্গে থেকো। দেখা হবে পরের ব্লগে।